चलिए, पहला टॉपिक करंट अफेयर्स की क्लास का है न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। किसकी है ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? है यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है। चलिए, क्या कुछ नया आया है इसमें? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होता क्या है सबसे पहले? एक डॉक्यूमेंट है 200 से ज्यादा पन्नों का। क्या है इस डॉक्यूमेंट में? क्या इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है? क्यों ये डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास में? हर देश अपनी 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में, राइट? हर किसी की अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होगी, हमारी भी है। यूएस की क्यों पढ़ रहे हैं हम, और है क्या ये डॉक्यूमेंट? ग्लोबल पावर है यूएस, ठीक है। और कुछ? इंडिया के बहुत सारे पार्टनर है स्ट्रेटजिकली। इंडिया दे ਲਈ यूएस, हाउ? ठीक है, बाद में आपकी। हाँ हाँ, कैसे कैसे? ट्रेड रिलेटेड कैसे? हाँ ठीक है, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 48 बिलियन का मुनाफा कमाते हैं हम, इसीलिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, राइट? और स्ट्रेटजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड के अलावा? इंडिया और दी वर्ल्ड एट लार्ज। व्हाई? बस क्वाड नहीं, आप पूरी स्ट्रेटजी पढ़ोगे? अरे बात वही है, यूएस इज अ ग्लोबल पावर। नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ ग्लोबल पावर। A 25 trillion economy which is penetrated into the institutional international world order is a global power, right? IMF largest quota, World Bank significant voting power, right? UN, one of the UNSC's member, permanent member, permanent member, right? So US is a global power. Now what is national security strategy? National security strategy is set of pages, or let's say a set of words which affects the further foreign policy of US. How US will behave with any situation happening in Middle East, how US will behave if any military coup happens in Iran, how US will behave if, let's say, in some country some protest related to some cultural issues or religious issues happens. What US will say? That you are not democratic, or US will say ki it's okay, it's your civilizational manners, right? It is just a reflection of that and we won't say anything to you, right? So how US is going to react to the future or upcoming events? Now strategy is not mere document, it is the further reflection of US upcoming actions कि यूएस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट लार्ज में कैसे बिहेव करेगा। द न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज द लेंसेज। वो क्या है? वो लेंस है जो हमें दिखाएगा कि यूएस वुड बी रिएक्टिंग लाइक दिस ओनली। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी is that it focuses upon economic nationalism. Economic nationalism. What is economic nationalism? That grow for your country. This thing should be produced in your country. If somebody is making, let's say, a four-wheeler and earning huge profits, why you are not making it? If you are buying a computer, right? If, let's say, the population, the young population, you have a significant chunk of young population, and young population need some computer hardware or some technology hardware, so produce them by yourself only, become the supplier. So first you will grow, think of your nation first, right? This is known as economic nationalism. समझ में आया? यूएस की पॉलिसी में कैसे है? नाउ यूएस इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर रिलेशंस ऑन ट्रांजैक्शनल पर्पसेस।
ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी। ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? Something for something, right? You give me something, in return of that I'll give you something, right? You give me money, I'll give you weapons. You give me your market, I'll give you technology, right? You will buy crude oil from me, fund my war, I'll give you concessions, I'll give you missile systems, I'll give you opportunity to manufacture that in your country only, I'll share technology with you. So this is what, this is something transactional in nature. You are not begging to someone, you are equally giving them something, and in turn of that they are providing you with something. This is what, this is transactional in nature. So now, was US before Trump not transactional in nature? Comparatively, no is the answer. No, it was not. Because US wanted to expand its soft power. To expand your soft power, you have to attack not on the soil of the country, not you have not have to threaten them militarily or economically, you have to capture their imagination. Right? So do good with them. Give them aid, give them donations, give them concession to your market only. Look, US is the largest market of the world and you are a poor country, so we will provide you some concessions, so welcome at our country at concession prices. Generalized system of preferences, ट्रम्प ने निकाल दिया था इंडिया को यहां से कुछ। मैं बोल तो रहा हूं that US earlier, when we say that US was the empire built by invitation, so how you are capturing their minds by showing them that you are so altruistic in nature. आप कितना दान देते हो, आपने अपनी मार्केट खोल दी उनके लिए कम दामों में कि आप करीब कंट्री हो तो आपके लिए हम कंसेशनल रेट्स पे मार्केट खोल देते हैं, आपके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी, बाकी कंट्री हो जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज उनके ऊपर ड्यूटीज लगा लेंगे इन गुड्स पे. सो नाउ यू विल फील दैट यूएस इज गिविंग समथिंग टू यू without asking from you something, but indirectly US is asking from you partnership in international institutions, respect for those international institutions, respect those actions when US unilaterally acted against the international law, when US marched on the soil of Iran, right, and on the soil of Iraq, let's say, to capture Saddam. They did something which is not legal per se according to the international law, but world kept quiet. Why? Because they needed something from US, which US is unilaterally providing them. Now Trump is saying, I don't want to provide you anything because I'm not going anywhere. You want to say something, say something. हम कहीं अटैक करने जा रहे हैं, आपको गालियां देनी है, दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो अटैक करेंगे, राइट? बट we will conduct our international relations in transactional, according to the transactional policy, because Trump believes, or let's say, don't mention Trump, the far right activist, the far right lobby of US politics believes that US has been used, US का यूज किया गया है, राइट? कि लोगों ने यूएस की मार्केट का यूज किया, पैसे कमाए, हर साल हमने 48 बिलियन अपनी जेब में डाले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और आज हम यूएस को आंखें दिखा रहे हैं. हमने हर साल उनसे पैसे लिए, हमारी पावर बढ़ रही है ना, उनसे पैसे दे रहे हैं, एड ले रहे हैं, मिलिट्री हेल्प ले रहे हैं, हमारी भी तो पावर बढ़ रही है. और अब हम जब थोड़े से बराबर के हो गए और आज यूएस में बोलता है कि ये मेरे लिए काम करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं क्यों कर दूं, मैं क्यों करूं तेरे लिए काम, राइट? खुद कर ले. सो ट्रम्प बिलीव्स नाउ, for example, the example of China, after 1978 US opened its market for China only. चाइना ने बनाए वाइपर जूते जूते सब बनाए और यूएस में भेजता रहा, वाइपर जूते चप्पल भेज के इतना अमीर बन गया, अब खुद की चिप बनाने लग गया. अब यूएस कह रहा है कि तू वाइपर ही बना, चिप मत बना. वो कह रहा है क्यों भाई, क्यों, क्या कोई ऑटोनॉमी है आपकी? मैं तो बनाऊंगा. एंड नाउ इन दिस सेम this policy, this strategy, they wanted to desinicize the global tech. Now what it means,
What do you understand by de-Sinicization of global tech? Sino और Sini is term used for Chinese. ठीक है, सीनो सोवियत स्प्लिट, सीनिफिकेशन, इसको चाइनीज के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है. सो आफ्टर ग्रेजुअली बिल्डिंग अप देयर इकोनॉमी, चाइना रियलाइज दैट नेक्स्ट गेम इन इंटरनेशनल रिलेशंस वुड बी गेम ऑफ टेक्नोलॉजी. Technology is everywhere, in your rockets, in your missiles, and more sharper technology you are possessing, more sharper hard power you are possessing. So there is a direct relation between technology and hard power. So China started to build its own hard power, right, in the technology sector. For example, day before yesterday, I was talking to my friend. He was posted in Jammu and Kashmir. He was telling me that when they caught those Pahalgam terrorists, so what they found with them was the sats from which they are communicating with each other was of Chinese origin. The reason why they are using Chinese origin and why they have stopped using Pakistani origin, maybe I asked him that maybe the reason was that US is now not supplying them, right? But he said that maybe it was a reason, but there is also some understanding, or let's say US want to call it a myth, that Chinese technology is superior than US technology in certain ways, right? For example, let's say military technology. Now US don't want to believe that, but you believe or you don't believe, reality won't change as per, right? आपके मानने ना मानने से reality change नहीं होगी, वो reality है किसी कारण की वजह से. Why Chinese tech is more in demand? Because Chinese build comparatively the similar thing with very cheap prices, because US had the expensive factors of production, China had the cheap factors of production. So China will build the same thing, the same 5G technology which is built by the US telecom carriers would be built by the Huawei with cheaper prices. And what US will do? US will ban Huawei on the grounds of security threat, just like India did. They would ban Huawei. There are grounds that there is a security threat, but now if people want 5G, right, अगर लोगों को 5G चाहिए, they won't see that. I mean, people would see first food and then national security. If there is no food, what do you do with national security? Right? तो पहले खाना चाहिए. खाना एम्प्लॉयमेंट से आएगा, ग्रोथ से आएगा, ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए. चाइना टेक्नोलॉजी देगा, सस्ते में देगा, अमेरिका वही टेक्नोलॉजी महंगे में देगा, विद रिस्ट्रिक्शंस देगा. तो क्यों लेना है भाई अमेरिका से? चाइना से ले लो. नाउ दे आर सीइंग दिस थिंग, राइट? उन्हें दिख रहा है कि स्प्रेड हो रहा है. चाइना नाउ अमेरिका एक्टिवली वांट्स टू रिड्यूस दिस थिंग. दे वांट्स टू डीसिनिसाइज द ग्लोबल टेक. US is technological from them. It is what it is. But in case of China, It is okay. populations are lower. हाँ. So China, It's not about superior only in terms of like that is war tested. For example, some people believe that F-35 is not F-35. What US wants to show that this is the mighty F-35. I mean, in US lobby, in US the political debate of United States of America, some people say that F-35 is not exactly the F-35. So it is still questionable. But yes, US technology is war tested. People have shown proofs, right? Everybody now had seen somewhere at some place US war technology. But still, the GBU bombers which they used, they still had not defied Iran. Iran तो अभी भी बच गया, right? Nobody believes that what US did or what क्या US ने नहीं किया, right? Now superior, we cannot say that superior is only that thing which is somehow we have seen the practicality of that thing कि इसको use किया गया इसलिए superior है. Superior we also have to talk कि can we buy this thing? If we want to buy a 5th generation aircraft, so we have two options. Let's go buy F-35 with restrictions. US can anytime restrict your access to F-35. See, jet is not के कार की तरह चाबी लगाई और जेट उड़ा लिया, ऐसे नहीं होता. वो तो फिर वो बात होगी ना, पाकिस्तान कहता है कि तेल तो पड़ा ही है, जहाज हम चला ही लेंगे. जेट के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं.
उनका एक्सेस ब्लॉक किया जा सकता है, राइट? सो F-35 आर प्रोवाइडेड विद रिस्ट्रिक्शंस। सेकंड थिंग, यूएस आपको F-35 प्रोवाइड कर देगा, सर्विस यूएस से ही होगी। जब भी पाकिस्तान को F-35 की सर्विस करानी होती है तो यूएस से ही बंदे आते हैं सर्विस करने। तो कारों की कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चाइना इसको थोड़ा ट्वीक कर देता है। पहला तो सस्ता, अप फ्रंट कॉस्ट ही कम हो गई। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस कम। हम तो खुद नहीं मान रहे डेमोक्रेसी में जिस मर्जी को मारो चेंगड़ू के साथ, हमें क्या दिक्कत है, राइट? तीसरा, भाई थोड़ा सा तुम्हें बनाने का तजुर्बा भी दे देंगे, राइट? तो सर्विस वर्विस इन सब चीजों की, स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कॉस्ट जो होगी कम होगी। ये फर्क है दोनों में। अब सुपीरियोरिटी इस चीज में देखो कि एक्सेसिबल कौन है, किसका प्रोडक्ट ज्यादा एक्सेसिबल है, राइट? बट दीज थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर मिलिट्री हार्डवेयर्स, जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसे यू वांटेड जीपीएस और बिडू, दोनों नेविगेशन सिस्टम्स है, ये टेक है, राइट? वो मिलिट्री हार्डवेयर। डन। तीसरा, एक मिनट, थर्ड थिंग इज which the strategy emphasized upon is the civilizational alignment. Is the civilizational alignment. What it means? इसका मतलब क्या है? हाँ, It means कि अगर कोई civilizational values different है, हाँ, हाँ. It means that if in some country there are protests, let's say in India there are protests in Manipur and they turn violent. So US won't lecture India upon democracy. US India को lecture नहीं करेगा democracy को लेके, right? They won't lecture us upon the democracy. They won't lecture some another country upon democracy or liberalism or let's say freedom of speech and expression. They would say it's happening in your house, it's issue of your house, solve it by yourself. We won't say anything. Why we are disturbing our ties with you if something is happening over there? Unnecessarily क्यों poke करनी अपनी nose? Earlier US did this same thing. Why? Because if you want to show yourself as a global policeman, you have to comment upon everything. अगर ग्लोबल पुलिसमैन बनना है तो पूरी दुनिया आपके अंडर होनी चाहिए ना। अब कोई माने ना माने, आप तो ये बात मानो, राइट? तो सुबह जब एमएलए बन चुके हो आप, रात को सोए एमएलए बन के थे, बने हो नहीं बने हो असल में वो मायने नहीं रखता, पर सुबह जब उठते हो तो अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम तो लेके उठते हो ना। फिर सुबह देखते हो कि ये चीजों पे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब यूएस अपने आप को ग्लोबल पुलिसमैन मान चुका है, राइट? यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक टाइम पे उसने बना दिया था, राइट? जो एनॉमली थी, नाउ दे हैव टू से थिंग्स अबाउट एवरीथिंग कि दिस इज हैपनिंग एट लाओस, दिस इज हैपनिंग इन कंबोडिया, दिस इज हैपनिंग इन ईरान, दिस इज हैपनिंग इन सऊदी, दिस इज हैपनिंग इन रशिया, दिस इज हैपनिंग इन नागोर्नो कराबाख। जहां पे भी कुछ भी हो रहा है हमें तो बोलना है, राइट? बिकॉज वी आर एंटाइटल्ड। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि वी आर नॉट एंटाइटल्ड. You should respect the civilizational pluralism, that there are civilizations, not civilization. Plural idea है civilizations का. There is debate versus civilization versus civilizations. Now US want to believe in civilizations because now multilateralism is rising. The power profile of countries is rising and you have to respect them. You cannot threaten them. You cannot bring them on the table and lash them out the table कि भाई हाँ भाई ये तो टेबल पे हमारी ये बात होगी और टेबल के बाहर हम उनको ही डांट रहे हैं. ये नहीं हो सकता. समझ में आया? यहां तक कोई, हाँ मल्टीकल्चरलिज्म लगा लीजिए, राइट? मल्टीकल्चरलिज्म थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट हो गया. मैं वो टर्म्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास है ना, ठीक है? फिर कहेंगे कि करंट अफेयर में भी पीएसआर पढ़ा के चला जाता है अपने बच्चों के लिए. ठीक है, समझ में आया? चले आगे. चलिए अब रशिया के साथ कैसे बिहेव करना चाहता है? विद रिगार्डिंग रशिया, दे वांट टू मेंटेन द पीरियड ऑफ दितांते.
that it's enough, let's not fight with each other. While we are fighting with each other, we are putting our resources to fight with each other. Stop that fighting. ठीक है भाई, हम दोनों जब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो अपने दोनों के रिसोर्सेज एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, वो हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यही रिसोर्सेज हम कहीं और यूज कर सकते हैं. The amount of aid and money US is putting into Ukraine, US को लगता है कंप्लीट वेस्ट है, इसे मैं कहीं और लगा सकता हूँ. आई कैन स्पेंड द सेम मनी इन द वियतनाम, राइट, ताकि वो चाइना से बाहर निकाला जा सके, इन कैम्बोडिया ताकि वो चाइना से बाहर निकाले, मतलब इन साउथ ईस्ट एशिया. और आई कैन पुट द सेम मनी इन गाजा और इन मिडल ईस्ट, राइट, कि जो पैसे वहां जा रहे हैं वो यहां जा सकते हैं. बिकॉज दे ऑल्सो नो कि द रशिया यूक्रेन वॉर नाउ इज एन प्रोट्रैक्टेड वॉर. ये खींच चुका है, इसका कोई अंत नहीं है. रशिया लड़ता रहेगा, रशिया के पास बहुत संसाधन है लड़ने के लिए, वो लड़ते रहेंगे. इतना बड़ा मैदान पड़ा है, खेतों की कमी नहीं है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है, वो लड़ते रहेंगे, उनके पास कोई कमी नहीं है. एक ऐसी पहली बार अजीब घटना हुई है कि कोई देश लड़के हाई इनकम कंट्री बन गया. वो तो तरक्की कर रहे हैं लड़के, उधर बेचारों का उनका एक पांचवा देश हिस्सा, 1/5 हिस्सा जो है वो रशिया के अंडर है, और आधा ईस्टर्न यूक्रेन जो है कंप्लीटली इस वॉर डायनेमिक से तंग हो चुका है. सुबह उठते हैं तो आधा शहर खत्म मिलता है, कोई बिल्डिंग टूटी मिलती है, तो रात को सोने की गारंटी क्या है? लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, उनके सिविलियन एम्यूनिटीज पे जो है अटैक हो रहा है, राइट. सो वी डोंट वांट टू प्रोट्रैक्ट दिस वॉर, वी वांट टू पुट अ फुल स्टॉप. एंड आफ्टर पुटिंग अ फुल स्टॉप, हाउ वी विल बिहेव विद रशिया? कोर्डियली. हम रशिया के साथ तमीज से बात करेंगे. आप अपना कर रहे हो करो, हमारे मैटर्स में जो है पोक मत करो, राइट, हम आपके मैटर्स में पोक नहीं करेंगे. सो दितांते क्लियर, यहां पे कोई डाउट? एंड रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक, सो नाउ कम्स द मेंशन ऑफ इंडिया. यहां पे इंडिया का मेंशन होता है. मैंने कहा था ना, इंडिया को 2 बार मेंशन हुआ था जब पहले हम बात कर रहे थे. एक तो मेंशन हुआ था जब वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की सुलह हमने करवाई है, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मेंशन वहां पे हुआ था, राइट. एक हुआ था जब ट्रंप ने इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर 2 पेज का ट्रंप का नोट है, अपना नोट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें उसने दोबारा यही बात लिखी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने कराया है. तो दोनों का 2-2 बार नाम वहां पे आया है. पाकिस्तान का यहीं पे 2 बार नाम आया है, हमारा उसके अलावा भी आया है नाम. जैसे कि पहला नाम हमारा यहाँ पे आया है कि इंडो पैसिफिक को लेके क्या है. नाउ अंडर दिस सेक्शन यूएस वॉन्ट्स कि इंडो पैसिफिक के अंदर कोई सिंगल डोमिनेंट पावर एग्जिस्ट ना करे. नाउ द सिंगल डोमिनेंट पावर एग्जिस्टिंग इन इंडो पैसिफिक इज द स्ट्रेट डायरेक्ट कमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना. चाइना लिखा नहीं है पर बात हुई गई है कि हमें वहां पे सिंगल डोमिनेंट पावर नहीं चाहिए. हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस? इकोनॉमिकली लोगों की एड करके, उनके साथ जो है रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करके, जहां पे इंडिया का नाम लिखा गया है. नाउ यूएस वांट इंडिया टू बी फर्स्ट ऑन दिस चेन ऑफ आइलैंड्स, राइट. जो चेन ऑफ आइलैंड्स इंडो पैसिफिक की है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस यहाँ पे हैं. मैंने बताया था ना आपको कि यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडो पैसिफिक की शुरुआत इंडिया से होती है. हमारी स्ट्रेटेजी में इंडो पैसिफिक की शुरुआत कहां से होती है? कहां से? अफ्रीका से, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. इंडियन ओशन देख लो ना कहां पे है, वेस्ट अफ्रीका में तो अटलांटिक ओशन लग गया, ठीक है. लेकिन अमेरिका के लिए हम पहले हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, स्टैंडिंग एट द गेट्स ओनली. तो वो चाहते हैं कि हम पहले आइलैंडर की तरह ही अपनी अपॉर्चुनिटी को निभाएं. बेसिकली दे वांट मोर ऑफ आवर बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि नेवल प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए. नेवल प्रेजेंस ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया को डिफेंस पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नेवल प्रेजेंस रखनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज दे वांट यूएस टू बी प्रेजेंट एल्सवेयर, राइट. तो अगर भाई महान भारत बनना है तो यूएस कह रहा है कि बन ले भाई, फिर किश्तियां ले अपनी निकाल के 10-15 और बन ले, मुझे क्या दिक्कत है, बट उसके लिए लगेंगे पैसे. नाउ इंडिया डोंट वांट टू डू दैट. हम पागल तो नहीं है ना, हमें पता है कि हमारी चद्दर कितनी है, उतनी पैर पसारने. बोलने की बातें अलग होती हैं पर प्रैक्टिकलिटी में बातें अलग होती हैं, राइट. मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि आज तक सभी महान पावर वो बनी है जिनके पास अपने हथियार थे, अपने जो है बंदूकें थी, राइट. और जरूरी नहीं है कि अगर आज तक वही बने हैं तो आगे भी वही बनेंगे. अशोका का एग्जाम्पल है कि उसने अपना पूरा एम्पायर सिर्फ एक आइडिया पे बिल्ड कर दिया था, रिलीजियस प्लूरलिज्म, राइट. कोई हथियार नहीं चलाए थे उसने,
सो हो सकता है, हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कि एक आइडिया के बेसिस पे आप पूरा बड़ा एम्पायर बिल्ड कर देते हो. सो नाउ वी नो कि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, आर रिसोर्सेज आर एंगेज समवेयर एल्स. 100 दिक्कतें तो अंदर की है ना. यहाँ पे 4 आदमी का तो मत मिलता नहीं, एक साथ चाय पी रहे हो. 140 करोड़ लोगों कैसे मिल जाएगा? और उसमें से पॉपुलेशन को स्किल करना है. अभी एआई सामने खड़ा है गेट पे, विच इज गोइंग टू ईट द मोस्ट क्लरिकल जॉब्स, राइट? सो यू हैव टू डू स्किल अपग्रेडेशन इन ह्यूज लेवल. उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, तो या तो रिसोर्स वहां लगा लो या फिर वहां लगा लो किश्तियों को खड़ा करने में, राइट? बट यूएस वांट्स दिस. एंड सेकेंड थिंग यूएस वांट्स फ्रॉम अस इज मोर इकोनॉमिक ट्रेड. बाय इकोनॉमिक ट्रेड दे मीन कि एक तरफा नहीं, 2 तरफा प्यार कीजिए हमसे. ठीक है, मतलब हम आपको अपनी सारी मार्केट दे दें और आप हमें एग्रीकल्चर का कुछ भी ना दें, तो वो नहीं चाहिए. हमें भी आपकी बहुत बड़ी मार्केट चाहिए ही चाहिए, राइट? वी आर प्रोड्यूसिंग कॉर्न्स. अब यूएस कॉर्न प्रोड्यूस करता है, सोयाबीन प्रोड्यूस करता है. उसका सोयाबीन और कॉर्न कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है. जिस हिसाब से उन दोनों के लक्षण है, किस दिन लड़ाई बच जाएगी, चाइना कह देगा जा फिर मक्की और ये भी किसी और को खिला दे, तो हमें खिला दो, हम खा लेंगे. बट हम अपना खाएंगे ना पहले. अगर हमने उनका खाना शुरू कर दिया तो हमारे यहाँ के बेचारे क्या करेंगे? कि यहाँ तो मक्का भी नया नया ऐसा लगना शुरू हुआ है. पिछले 5-6 सालों में मेज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी है इंडिया में, जब से एथेनॉल वगैरह की बात ज्यादा होना शुरू हुई है, राइट? सो फर्स्ट वी विल ईट आवर्स. बट वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मार्केट को डेमोक्रेटाइज करो, मेरे लिए खोल दो. इंडिया ने आज तक अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ऐसा किसी के लिए खोली नहीं है. जिनके लिए खोली है उनके पास उगाने के लिए कुछ है नहीं, है ना? तो इसलिए हम डर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल अभी बहुत ज्यादा अनटैप्ड है. जब तक वो हम कंप्लीटली उसको स्ट्रेंथन नहीं कर देंगे, तब तक हम कैसे खोल देंगे? ठीक है, समझ में आया यहां तक? ये क्या है? ये है यूएस की न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. डन. सेकंड टॉपिक जो है आपका, वो है बॉन्डी मैस्केयर. सुना है इसके बारे में? कहां हुआ है बॉन्डी मैस्केयर? ऑस्ट्रेलिया में. कहां पे? सिडनी. गया है कोई वहां पे? मैं गया. बीच बढ़िया है, बट जब मैंने वहां गोलियां चलती हुई देखी, पहले मुझे लगा कि ये पता नहीं क्योंकि मैं कार चला रहा था और मेरे साथ में मेरा दोस्त रील देख रहा था और उसने रील खोल रखी थी और वैसे दिखा रहा था कि देख तेरे दूसरे घर में क्या हो रहा है. तो मैं ऐसे देख रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि ये अटैक हो गया है. मुझे अगले दिन पता लगा कि जो ये मुझे लगा सीरिया सूरिया में गोलियां चल रही होंगी. अगले दिन पता लगा कि ये गोलियां बॉन्डी में चल रही हैं. अब हुआ क्या है वहां पे? एक 54 ईयर्स के पिता और उनका बेटा 24 साल का, ठीक है, दोनों ने क्या करा? गोलियां चला दी पब्लिक में, जिसमें लगभग 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 10 साल के आसपास की बच्ची थी और जो है बहुत एज्ड, लगभग मुझे उम्र तो नहीं याद, लेकिन होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे. दोनों मर गए अमंग 16, राइट? ये कब हुआ? ये हुआ हनुका फेस्टिवल के पहले दिन पे. हनुका फेस्टिवल क्या है? जूइश फेस्टिवल है. कौन सा फेस्टिवल है? जूइश फेस्टिवल है. तो यानी कि ये जो क्राइम है, इसका नेचर कैसा है? दिस इज एंटी सेमिटिक क्राइम. कौन सा क्राइम? एंटी सेमिटिक. कोई भी क्राइम जो यूज के अगेंस्ट इस इंटेंशन से किया जाए कि आपको उस रिलीजन से एज सच हेट है आपके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी सेमिटिक क्राइम. और उस यूज के अगेंस्ट अपने मन में हेट रखना और उस आइडिया को अपने ऊपर हावी देना होना, उसको हम बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म. ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जब हिटलर ने हॉलोकॉस्ट प्रैक्टिस करी, जब वर्ल्ड में पहला जेनोसाइड हुआ नोटेड. उससे पहले भी जेनोसाइड्स हुए हैं, कन्वीनियंटली उनको कभी लिखा नहीं गया, राइट? अफ्रीका में पता नहीं कितने हुए हैं, अंग्रेजों ने कितने करे हैं, पर लिखा नहीं कभी, बिकॉज वो एक वहां के वो है ना, मुझे पता नहीं उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, बहुत जबरदस्त राइटर है अफ्रीका के, बहुत फेमस है. वो बोलते हैं कि हिस्ट्री हमेशा उसकी होती है, हिस्ट्री इज ऑलवेज बिलोंग्स टू दी विक्टर्स, राइट? तो अफ्रीका जीता ही नहीं कभी, हिस्ट्री कैसे लिखेगा? तो जेनोसाइड्स तो पहले भी बहुत हुए हैं अफ्रीका के अंदर, बट ये नोटेड था बिकॉज यूज क्या है, एक थोड़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी है.
अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंट्री है जहां पे जूस की पॉपुलेशन है, राइट। 8th लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, बट अगर पॉपुलेशन का आंकड़ा पूछो परसेंटेज में तो 0.94% के आसपास ही जूस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट। ये दो सिटीजन्स, एक कहां का, हाँ हैदराबाद लिंक, राइट, बट हैदराबाद से बहुत पहले जा चुके थे। एंड यू कैन नॉट ओ एवरीवन, आप किसी को ओ नहीं कर सकते। इफ समबडी डज समथिंग बैड वी कंडेम आउटफ्रंटली। अगर भाई किसी ने बाहर गोलियां चला दी तो हम ये थोड़ी कहेंगे कोई नहीं इंडिया का है, नहीं, गलत किया है उसने, 16 लोग मार दिए, 40 से ज्यादा घायल है, राइट, वी कंडेम्ड आउटफ्रंटली। एंड दिस इज अ टेररिस्ट अटैक, इसको टेरर अटैक क्लेम कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्लेम्स दैट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट। What is Islamic State? Islamic State is in terrorist organizations operating in different parts of the world, prominently in Middle East, in Africa, right now, right? Middle East where it used to operate in Syria, right? War-torn Syria, and it used to operate in Saharan belt, sub-Saharan belt of Africa. It has some elements in Afghanistan when US left, but now it is kind of dormant because तालिबान ने अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बट दे डिड रिएक्टेड व्हेन द यूएस लेफ्ट द अफगानिस्तान, राइट। उन्होंने एबे गेट पे अटैक किया था, फिदाइन अटैक जो है, वहां पे एक बंदा गया, कार वो ब्लास्ट हो गई और यूएस सोल्जर्स मर गए थे उसके अंदर। फिर बाद में यूएस ने ड्रोन से उसको मारा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भी झूठ है, कोई और मारा है और यूएस क्लेम कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को सर्वाइव करने के लिए कि देखो हमने बंदा मार दिया, राइट। बट ये आईएसआईएस के बारे में, आईएसआईएस की सोच क्या है, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ कैलिफेट अगेन। नाउ व्हाट इज कैलिफेट, कि पूरी दुनिया में मुस्लिम रूल होना चाहिए, इस्लाम की आइडियोलॉजी प्रेवलेंट होनी चाहिए, गो बैक टू द एंशिएंट टाइम्स। यानी कि साइंस क्या करनी है पढ़ के, क्या कर लोगे साइंस पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल, now this is not what Islam believes, right? Every religion believes in scientific temperament, it's how you read that religion. So they conveniently radicalize people कि भाई आप जो है religion को थोड़ा backward state में पढ़िए। यानी कि if you will find out the sun is the center of solar system, you will believe less in Allah. They believe like this. और ये कोई ISIS के साथ कॉमन नहीं है, ये कम्युनिस्ट चाइना में भी कॉमन था। जब लोग कहते थे कि माओ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, एक अंडा सा सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन जाएगा, है ना, तो वहां पे चुन चुन के जो फिजिसिस्ट वेस्टर्न फिजिक्स में भरोसा करते थे, बिकॉज वेस्टर्न फिजिक्स इज एडवांस्ड, राइट, दे आर टॉकिंग अपॉन प्रूफ्स एंड दे आर टॉकिंग अपॉन आइडियोलॉजीज, उनको मार दिया जाता था। ये हुआ है माओ के टाइम पे शुरू में चाइना के अंदर, राइट। तो अब यहां पे ये क्या कह रहे हैं, रेडिकल रिलीजियस डॉक्ट्रिन। अब ये दो इससे इंस्पायर्ड थे, राइट। बोंडी अटैक क्यों बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले एक साल में फ्रॉम सितंबर 2023 टू सितंबर 2024 316% एंटीसेमिटिक क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम्ड ईरान बिहाइंड दीज क्राइम्स। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान को ब्लेम किया और पिछले साल उन्होंने ईरान का एम्बेसडर भी भगा दिया ऑस्ट्रेलिया से, चाहे अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकले यहाँ से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया फाउंड सम प्रूफ्स दैट ईरानियन वर एडिंग दीज अटैक्स ऑन आवर सोइल, राइट। बट अब यहाँ पे दुनिया का अलग अलग प्रूफ है। some people are standing with Australia, everyone is condemning this attack, but बेंजामिन नेतन्याहू अलग ही लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब इनकी गलती है अपनी खुद की, because Australia was among those country who recognized Palestine. So he is claiming that you are directly, indirectly, आप क्या कर रहे हो, इस आइडियोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हो लोगों के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं वो सभी बुरे होते हैं, बिकॉज जो अहमद बाय स्टैंडर्ड था इस अटैक का, उसी ने अपने शरीर पे 2 गोलियां खा के अभी भी जो है आईसीयू में है, राइट। उसी ने ही उनको रोका, एक को रोक लिया और पता नहीं कितने लोग उस दिन मरे नहीं, राइट। सो रिलीजन बैड नहीं होता है सच। इवन ट्रम्प प्रेज्ड हिम, एंथनी एल्बनीज, उन्होंने उनसे जाके मिला हॉस्पिटल में, मैक्सिमम लीडर्स प्रेज्ड हिम कि जो उन्होंने किया है। बट रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। ऑस्ट्रेलिया में दूसरा है गन,
राइट, गन रेगुलेशंस, आर्म रेगुलेशन। ऑस्ट्रेलिया में फोर्थ आर्थर अटैक हुआ था तस्मानिया में 1995 और 85 के बीच में। ये अटैक रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन से वो इंस्पायर्ड नहीं था, ये एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड अटैक था। इसमें 35 लोग मारे गए थे इस अटैक में, ये तो इससे भी बुरा अटैक था। पहली बार कोई शूटिंग मैसेकर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में। जब ये उसके बाद क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में जो रेगुलेशंस है गन लॉज की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई थी। तो स्ट्रिक्ट करने में ये ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी कितने हथियार ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट करना मतलब कि आप लाइसेंस पे जो है गोली बंदूक ले सकते हो। वो यूएस की तरह नहीं कि सरसों का तेल लेने गए थे और एक बंदूक भी ले आए किराने में डाल के, वैसा नहीं करना है। मतलब लाइसेंस चाहिए, पहले आप वेट होगे, लाइसेंस बनेगा, फिर आपको लाइसेंस पे फायर आर्म मिलेगा। बट किसको कितने मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ये इसके प्रेपरेटर्स हैं, अब उस पिता के पास जो मर गया पुलिस फायरिंग में, उसके पास 6 फायर आर्म्स थे एक लाइसेंस पे। दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल रेगुलेशन। ये रेगुलेशन नहीं होती, राइट? तभी तो दोनों बाप बेटे गोलियां लेके चले हुए थे लोगों को मारने के लिए। दूसरा, इससे जो देखने को मिलता है दैट नाउ टेरर अटैक्स आर नॉट कमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। पहले अलकायदा ने कोई अटैक करवाया है, जैशे मोहम्मद को अटैक करवा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन जब ऑपरेट करती है ना, इट इज इजी टू ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन। बट नाउ फैमिली सेल्स आर ऑपरेटिंग। एक ही घर के अंदर 2 बाप बेटा अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कौन सोचेगा कि आप किसी घर के आगे से निकल रहे हो, यहाँ पे अंदर जो है एक टेरर अटैक की प्लॉटिंग चल रही है, एंड नोबडी कैन टैप देयर होम। दो इसमें एक इंटेलिजेंस गैप भी है। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको टैप कर लिया था, बट दे बिलीव्ड इट एज अ डोमेस्टिक थ्रेट। तो इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन आई, उस एजम्पशन में और उस एक्शन में बहुत बड़ा गैप आ गया, और उसके बीच में ये हो गया लोन वुल्फ अटैक। नो, वी कैनॉट कंसीडर दैट लोन वुल्फ अटैक, क्योंकि 2 बंदे हैं यहाँ पे। बट यस, अगर आप लिटरली लोन वुल्फ अटैक को लोन वुल्फ अटैक नहीं ले रहे हैं कि एक लोनर ही जाएगा, तो यू कैन कंसीडर दिस लोन वुल्फ अटैक। बट इनका स्केल बहुत छोटा है। जब स्केल बहुत छोटा हो जाता है प्लॉटिंग का, टेरर अटैक के, तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इट इज मोर प्राइवेट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 5 people of different regions or maybe different countries are meeting with each other, intelligence agencies can track them. Why these 5 people, one from different country, another from different country, another from different country with different backgrounds, or let's say same kind of background, and they're meeting with each other? It is suspicious. But when father and his son, they meet with each other, you cannot say this is suspicious. मैं और मेरे पिता तो हर रोज मिलते हैं, हर रोज बात करते हैं। So when the cell is more constrained, it is difficult to track the cell, right? तो वो बोंडी अटैक में हमें दिखा है। डन, चलिए।